अभी TWD के लिए ये नहीं आ रहा एक्चुअली, ये जो सर्कुलर मोशन नेक्स्ट TWD से आएगा। ओ नहीं TWD का मत, TWD नहीं मतलब कोर्स सबसे पीछे होता चले जाएगा ना हमारा, फिर कैसे करोगे? एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 27 में डाउट, HCV में डाउट है क्या? यस HCV वाला करते हैं। यस हाँ सो HCV का which one? सर एक्सरसाइज में से मेरे को 23rd और 27th में एक्सरसाइज में डाउट है। ओके हाँ, मुझे भी एक्सरसाइज में बस एक चीज पूछनी थी, मींस मेरा हो गया, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो मैं पहले वो ओमेगा स्क्वायर बाय आर से ट्राई कर रही थी, लेकिन उससे नहीं आ रहा था। फिर मैंने वो वी का वाला ट्राई किया, वी स्क्वायर बाय आर वाला, उससे आ रहा है। और मुझे वो 27.3 डेज है ना, उसका वो नहीं आ रहा था कन्वर्जन। ओके ठीक है। तो फर्स्ट which one we have to discuss? 20 सर फर्स्ट 21st ओके नो फर्स्ट ओके 21st we have to discuss हाँ सर, नॉट 21st 21 you are saying ना? पहले फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। Oh, first question. चलो ठीक है. Find the acceleration of the moon with respect to the earth. Okay, from the following data. Distance between the earth and the moon is given. Time taken दिया हुआ है. हाँ. So acceleration will be which much, Ashleja? Which will be the acceleration? Sir, acceleration. It's a uniform. Radial acceleration because uniform circular motion. Yes. Uniform circular motion. So radial acceleration होगा. अब AR you have the choice. Either you can find omega square R or V square by R. So it's not coming by omega square by R, sir. I tried. Oh, omega square R से नहीं आता है. Okay, ठीक है. Omega is the angular speed, angle omega. Angle by time. You can get it by omega square R. Just you need to find V upon R. Yeah, V upon R Okay. first. Time जो है one revolution का time is how much? which है? 127.3 days. So we can 27.3 days, and one day has 86400 seconds. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है. तो ये you got this as omega. So we'll use this one. AR is omega का square. 27.3 into 86400 का square into R. The distance between the earth and the moon is how much? R is 3.85 into 10 to power 8 meters. Correct, guys? इससे आ जाएगा आंसर? Yes, sir. Okay, next question. Which is the next doubt? So 11th one. 11th वाला. Okay. So 11th वाले में जो है a ceiling fan has a diameter जो है circle, और इसका जो है ceiling fan has a diameter, ठीक है, दिया है circle through which the outer edges of the blades of 1 centimeter, the 120 centimeter. तो रेडियस कितना हो जाएगा इस यहाँ पर? So 121 centimeters, no? हाँ क्या 121 centimeters दिखेंगे. नो, डायमीटर मेरे को 120 दिख रहा है. 60 सेंटीमीटर. रेडियस भी 60 सेंटीमीटर ना? नहीं सर, मतलब डायमीटर को 121 दिखेंगे क्या? नो, why 121? So we are adding just that. diameter is 120. हाँ, wait, my bad. हाँ, और ओमेगा जो है एंगल बाय टाइम, it's 120 revolutions. 120 into 2 pi per minute. 60 seconds, which is 4 pi radians per second. So it's 1500, no? Yeah, sir.
Yes. हाँ क्या? Oh, 1500. Sorry. 1500. Oh, ये क्या कर रहा हूँ? 1500. 1500. So this is 1500. अब जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 50 pi. 50 pi. 50 pi. 50 pi, sir. 50 into pi radians per second. And ठीक है. Consider a particle of mass sticking at the outer end of the blade. Okay, ये ऐसा. And say this is the, say ये blade. This is the blade here, और ये वाला particle. How much force? अब इसमें forces क्या क्या आ जाएंगे देखते हैं. So mg और इसका it's a uniform circular motion, so it also must have radial force. So friction. Radial force will be mass into radial acceleration. So Yes. radial acceleration कितना आ जाता है guys यहाँ पर? 2500 pi square. R is 60 by 100. Radial acceleration की वैल्यू बताओ कितनी आती है? 125 by 3. 120. How much, David? 120. How much? 125 by 3. 125 by 3. Okay. वो पाई स्क्वायर की वैल्यू को भी रख लिया था ना पूरा? No, sir. Oh, 125 by 3 pi square you are saying, right? Yes. Okay, 120 guys, ये check कर लो. 125 by 3 pi square. हमको फोर्स निकालना है. नहीं ये स्नेल ये मैच हो रहा है ना? हाँ हाँ. So ये कितना हो जाएगा? pi square को 10 भी रखते हो, say 1250 divide by 3. This will be how much? सर एक मिनट. 125 by मुझे 3 नहीं. 1500 pi हाँ square सर. आया. 1500 pi कैसे square. आएगा? हाँ सर. कितना आ रहा है इसमें? कितना? 1500 1500 pi square. 1500 pi square. हाँ सर. Okay. So 1500 pi square. समझाने कि आपने ऐसे लाइक फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन मास इनटू AR क्या किया, मतलब मैंने तो फ्रिक्शन लिया था उसे. नहीं अभी कुछ नहीं. अभी ये इससे चिपका हुआ है. यहाँ पे रिकॉल लगा के चिपका दिया इसको. So this is 1500 pi square. ये आ गया. Can't we take m into omega square r? नहीं वही ने लिखा है ना, AR की जगह m into omega square r. ठीक है. हाँ. अब जो है यहाँ तक तो आ गया. So m into ये वाली वैल्यू. अब देखो यहाँ पर what they have asked. क्या निकालना है वहाँ पर? How much force does it experience when the fan runs at full speed? तो फैन जो है भाई फैन दो फोर्स लगाएगा. एक फोर्स जो रेडियल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करेगा और एक पार्टिकल को गिरने से बचाएगा. तो फैन जो है वर्टिकल ऐसा भी फोर्स लगाएगा फैन का, और फैन का रेडियल फोर्स भी होगा. अदरवाइज पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी नहीं करेगा और वर्टिकली इसको बैलेंस कौन करेगा? सो गाइस व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड? यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा फिर? नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स के वर्टिकल डायरेक्शन में तो F इक्वल टू mg आएगा ना. क्या क्या क्या? वर्टिकल डायरेक्शन में F इक्वल टू mg आएगा ना. नहीं mg जो है अर्थ खींच रहा है. हमें तो फैन के फोर्सेस देखना है. ये फैन का फोर्स है, ये भी फैन का फोर्स है, ब्लेड का फोर्स, राइट? पर वो mg के एकदम अपोजिट है तो mg के इक्वल नहीं होगा. हाँ नहीं होगा, वो तो बात की बात है. पहले जो है, अरे ये कौन आ गया यार? अरे भाई रुक जाओ. हाँ चैतन्य, somebody is writing. सर आप ऑप्शंस में reading room में एनोटेट कर- डिसेबल कर सकते हो.
Yes, yes, I forgot that. चलो भाई, हाँ देखो, so इस पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस, ये अर्थ का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अब फैन का ब्लेड जो यहाँ ब्लेड से जो चिपका हुआ है, इट इज स्टिक, द पार्टिकल इज स्टिक। सो यहाँ पर फोर्सेस, दो फोर्स आएंगे। फैन का ब्लेड वर्टिकल डायरेक्शन में भी लगाएगा और रेडियल में भी लगाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन वाला mg को बैलेंस करेगा, राइट? उसको हम कैसे निकालेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन में you'll write in vertical direction FB, force by the blade vertical direction minus mg is equal to m into 0. So blade का vertical direction में component is mg. Okay. अब blade का radial direction में force. So blade का radial direction में force कैसे निकालोगे? Again Newton's law. Blade का radial direction में force, Newton's law, radial direction. रेडियल डायरेक्शन वाला चाहिए ना हमको। Oh, यहाँ पे I'm calculating both. m into radial acceleration 1500 pi square. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. तो नेट फोर्स फैन का कौन सा हो जाएगा? नेट फोर्स ब्लेड का नेट फोर्स कितना होगा? ब्लेड का नेट फोर्स सर 10 to the power minus 2 हो गया, मतलब अरे ब्लेड का और तो ये रेडियल का 1500 पाई स्क्वायर है ना? ये भी ब्लेड का फोर्स है, ये भी ब्लेड का फोर्स है, तो नेट फोर्स कितना होगा? mg square plus नहीं, यहाँ पे पूछा क्या है? ब्लेड, फैन के ब्लेड का फोर्स पूछा है कि क्या पूछा है? ओह, हाउ मच फोर्स सर does it experience? radial design. Okay, so that means net force पूछा है। तो net force हम क्या लिखेंगे? Simply mass into acceleration, right? Mass into acceleration. Net force Newton's law से, तो इतना करने की जरूरत नहीं। Newton's law से mass into acceleration, mass is 1 gram, acceleration अभी निकाला, कितना निकाला था? 1500 pi square. So इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ इससे हो जाता था आंसर। गाइस, ये वाला करेक्ट है क्या? चेक करो। सर ये तो मैं आपका Yes, जो sir. शॉर्ट वाला मेथड है वो समझा, पर ये लॉन्ग वाला मेथड से फिर कैसे करते हैं? मतलब लॉन्ग वाला मेथड से निकालना ही नहीं है, नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। पर सर Correct. समस्या वाले से निकालना रहता तो फिर अपन ने क्या रिजल्टेंट निकाला होता क्या दोनों फोर्सेस का? अरे रिजल्टेंट भी क्यों निकालेंगे? ये और ये कैंसिल हो गए एक दूसरे को, तो गया, सिर्फ बचा रेडियल वाला। अच्छा ओके सर, समझे। सर फिर वो एफबीडी वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है? नहीं, एफबीडी तो बेसिक पहले बनाना ही पड़ेगा। एफबीडी बिना बनाए आगे वाला नहीं जाना चाहिए। एफबीडी नहीं, वो एफबीवी एफबीआर वो। नहीं नहीं, ये वर्टिकल वाला तो कैंसिल हो गया। हाँ सर। पर एक्चुअली नहीं उसको समझ पाया, erase- कल मैं क्यों होगा? कैंसिल हो गया तो आप उसको इरेज कर लोगे तो बचेगा क्या? सिर्फ रेडियल वाला, वही आंसर। हाँ सर। ओके सर। चलो पर- अब जो है और वैल्यू पर- 14.8 न्यूटन आ रहा है वो आंसर मैच नहीं हो रहा है। आंसर्स में। हाँ तो हो रहा है मैच। पाई स्क्वायर की ये तो वैल्यू, हाँ देखो 3.14 का स्क्वायर। pi square के बाद हो रहा है। उसने बोला कि हो रहा है वो। हाँ वही हो रहा है। हाँ Sir, मैं हाँ। बोल रहा था कि सर हो रहा है मैच ऐसे। ओके, यू आर सेइंग मैच इज मैचिंग। हाँ sir, in All that right. uniform circular motion, Ah. that is if we sit on that, if we consider the frame with respect to that one, it is considered to be inertial or non-inertial, sir. नहीं, अभी तो आई एम सॉल्विंग एवरीथिंग इन इनर्शियल फ्रेम। No, sir. If we consider that to be that frame, नो यू वांट, sir. वो तो नॉन इनर्शियल वाला इसके बाद, अभी नॉट नाउ, अभी इनर्शियल Okay, फ्रेम। sir. Because the direction is changing, there is acceleration, so it is today- considered to be non-inertial, sir. नहीं नहीं, ऑब्जर्वर इज ऑन द ग्राउंड, दैट्स इट, सो द फ्रेम इज So if we were doing from the particles frame, then we would have to like सर यहाँ पे Take नॉर्मल pseudo आना force. चाहिए ना। pseudo, yeah, but which pseudo force would we take? Okay. अरे Would it have to be a और- in front of the two? अरे तुम लोग नॉन इनर्शियल वाला डिस्कस क्यों कर रहे हैं? व्हेन आई हैव नॉट टॉट
So why you सर मैं guys इसी are फ्रेम का बोल रहा हूँ discussing? कि सर Yes, ऊपर नीचे mg लगेगा वाला तो issue closed guys, non inertial वाला issue closed. अभी मैंने पढ़ाया नहीं, I don't know. Okay, sir. Okay. Sir, हाँ. itne sab mein I got confused. Why is there a vertical component of the first wire blade? हाँ सर क्यों है? Oh my god. अरे वो अरे normal फैन, सर वो तो अरे नॉर्मल motion क्या रहते थे नॉर्मल ना। लोग कर रहे हो? अगर मान लो यहाँ फैन को रोक दिया जाए एंड यू कीप द पार्टिकल यहाँ पर, तो जो है ये उसको कहाँ के देखो क्या लिखा है वहां पर, स्टिकिंग द आउटर एंड ऑफ द ब्लेड, उसको स्टिक करके रखा है वहां पर चिपका के, राइट? Yes. हाँ सर। तो बस ब्लेड का नॉर्मल फोर्स, इसको नॉर्मल बोल लो, वर्टिकल बोल लो, इसमें क्या है का इशू? व्हाई इज द इशू हियर? करेक्ट? Sir, no, मतलब normally now, like अरे वर्टिकल बोल दिया, अगर मान लो ब्लेड के सरफेस के ऊपर रखा है तो नॉर्मल हो गया, और क्या? हाँ sir, आपने वो vertical, sorry, वर्टिकल हो गया, बस वर्टिकल सरफेस पे लिखा रहेगा तो नॉर्मल हो गया। अगर ऐसे रखा है उसके एज पे चिपका के रखा हुआ है वर्टिकल हो गया, उस ऊपर डायरेक्शन तो वही आएगा ना ऊपर। So we've taken it to balance the force down, right? mg जो नेचर है उसको बैलेंस करने के लिए लिया है ना वो ऊपर। हाँ यस, और तो अदरवाइज वो इसको तो हम बैलेंस कौन हमेशा ही करेगा? लेते थे ना, लाइक पहले भी हमने जो एग्जांपल्स कराए थे उसमें सब में लिया ही था ना एन और mg तो। हाँ करेक्ट, ऐसा तो उसका वर्टिकल फोर्स बोला है मैंने। चलो अब उसका बी पार्ट, who exerts this force on the particle? कौन आएगा? फैन का ब्लेड ना, obviously. How much force does the particle exert on the blade? Along its वही हुआ ना, along its surface के along कौन सा फोर्स है? अरे सरफेस के along, the radial one. AR. तो यही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर इसका? 14.8। 14.8. Okay. Guys, you all, everybody understood? Yes. So I'm getting 15. So is that okay? नहीं, वहां पर पाई की वैल्यू फिर देख कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पाई स्क्वायर की वैल्यू ना, उससे फिर आंसर मैन ये होगा। ओके सर। चलो हाँ, नेक्स्ट बताओ भाई कौन सा है फिर आफ्टर 11th? 20 सर 21. Okay. 21 ओह हाँ, 21 कैसे किया था गाइस? किसी का आया क्या आंसर इसमें? हाउ डिड यू डू? सर मुझे भी यही डाउट है। आया सर, मुझे आया। द रूलर, ठीक है, the friction coefficient between the ruler and the block is mu. The block is fixed at one end and the block जो है distance, ruler fixed at one end, block is the distance L. It is rotated about the fixed end in the horizontal plane to the fixed end, ठीक है? Maximum angular speed. Oh, maximum angular speed. So guys, ये वाला जो है इसको रोटेट कर रहे हैं। This is A part. यहाँ पे मैक्सिमम एंगुलर स्पीड निकालना है। And for the B part, angular speed is uniformly increased from 0 to angular 0, ठीक है? तो 0 से बढ़ा रहे हैं। हाँ गाइस, पहला और सेकंड वाला कैसा मोशन है? तो सेकंड one would be non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म कैसे आ गया? क्योंकि क्योंकि acceleration, angular Okay. acceleration. angular speed is increased, so it's Okay, accelerating. so this is non-uniform circular motion, all right. और फर्स्ट वाला? Uniform, because Uniform. ओके, इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा पे स्लिप हो, इससे ज्यादा वैल्यू सस्टेन नहीं कर पाता, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके गाइस, यहाँ तक इसको डाउट? सीमान? Yes, sir. What is the doubt? Nothing, sir. No doubt? Why is B uniform circular motion?
say case B, it is a non-uniform circular motion. Sorry, why is the case B is a non-uniform circular motion? बताओ. अरे, so Ruchir, It's because they have said that they are increasing the angular speed. yes, they are increasing the angular speed na from 0 at an angular acceleration alpha. और फर्स्ट वाला है जो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, मतलब हर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड, मतलब उस वैसे जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब वो क्या हो जाएगा, इट स्लिप्स. हाँ, यस गाइस, इसमें किसी को डाउट? श्रावणी अंडरस्टूड ना, दोनों केस, फर्स्ट केस यूनिफॉर्म और सेकंड वाला नॉन यूनिफॉर्म? हाँ सर, समझा. चलो ठीक है. अब ये बताओ फ्री बॉडी डायग्राम में क्या आएगा पहले वाले केस में? फोर्सेस, ये मान लो पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है. The forces centripetal force. Yes, mg. अब सरफेस का वर्टिकल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, जिसको बोल लो भाई, ठीक है, ये हो गया. इसको बनाना जरूरी नहीं है. क्या n और mg को बनाना जरूरी नहीं है. Yes, n and mg will cancel out each other और इससे मैक्सिमम फ्रिक्शन भी आ जाएगा. Yeah, fs max umg on that mu side. into n. चलो ये भी आ गया, mu into n. हाँ, और फिर क्या आएगा इसमें? इट्स कैसा सर्कुलर मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो इट विल हैव ओनली रेडियल एक्सेलरेशन. सो रेडियल फोर्स भी होगा ना भाई. रेडियल फोर्स कौन, गाइस, who will be responsible for providing this radial force, this centripetal force? The ruler. Radial acceleration. The ruler. नहीं, this radial force will provide acceleration. Who will provide this force? Ruler. And that will be called as which force? कौन सा force होगा? Friction. Okay, friction force. चलो ठीक है. तो रेडियल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ बताओ भाई क्या आएगा? Radial direction. Power will be equal to Mass times radial acceleration. Okay. So F जब FR है ना, F is friction, the static friction, radial acceleration हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R. ओ जैसे इसको F is m into AR. रुक जाओ. और ये मैक्सिमम, जब इधर मैक्सिमम होगा ये भी मैक्सिमम हो जाएगा. और fs max कितना होगा? mu into n. n is mg. और a maximum क्या होगा गाइस? रेडियल एक्सेलरेशन. Say this is the maximum angular speed, omega max. Omega square. Yes, omega square. Omega square. यार इसका रेडियस क्या L है क्या? L है सर. ठीक है, तो इससे ओमेगा मैक्स की वैल्यू क्या आएगी? Root n Ganesh? So I have a doubt in this. Yeah. In which direction is the friction force acting? Sorry. In which direction is the friction force acting? Yes. Yeah. By Newton's law, जिधर ये वाला arrow, उधर ये वाला acceleration. So wherever is the radial acceleration, friction will be in that direction. Now you tell, where is the radial acceleration? Okay, so it will act in the radial direction. No, radial acceleration का direction कौन सा होगा? Which will be in which direction? Towards the center. Okay, so it will act. If radial acceleration is towards center by Newton's second law, friction also will be towards the center. You all are correct? But friction opposes the movement, right? अरे ये friction opposes, supports सब बाद में. पहला Newton's law. यहाँ पे relative motion हो ही नहीं रहा. Friction opposes नहीं, friction opposes relative motion. Relative motion कहाँ हो रहा है? Yes, sir. Relative motion, not. अरे रुचिर, it is not a relative motion. वो तो साथ-साथ घूम रहा है ब्लेड के साथ, रूलर के साथ-साथ, right? Yeah. So there is no relative motion. तो हम बोलेंगे, हम न्यूटन्स लॉ को सैटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे. और जिधर एक्सेलरेशन होगा, friction must be the provider of that acceleration. Otherwise, it will be a failure of Newton's second law, right? Okay. So the radial acceleration itself came from the friction. Okay. Yes, friction is the cause for that radial acceleration. If there was no friction, then it
wouldn't even be on the result. Yes, remember last class का sum? अगर if there is no friction, the block stays there or just slips there. Yeah, would just fall Correct off ना? when it starts spinning. चलो, guys, ये तो हो गया A part. How will you do B part? So the equation omega final is alpha. अरे हाँ, इसका free body diagram mg, same thing, mg n equal to mg. यार यहाँ दोनों आ जाएंगे, तो रेडियल और टेंजेंशियल दोनों रहेगा. ओके, चलो तो टेंजेंशियल भी फोर्स एक आए तो ये there is both acceleration, so radial and tangential दोनों accelerations हैं, तो दोनों directions में there must be forces. And guys, who will be, which force is providing this radial and tangential? Sir, both friction. Frictional force. Friction force. भाई देखो n and mg, let's draw the top view. तो top view जब draw करेंगे इसमें यहाँ पर, say you have this particle और ये circular motion हो गया उसका. This radial acceleration है तो radial force must be there. Tangential acceleration है तो tangential force must be there. So obviously in the plane of the circle there can be only one force which can act in the plane of the circle along the surface, and that is friction. So friction जो है ऐसा कुछ act होगा somewhere in between, और friction ही friction के दो components निकलेंगे. One component will provide radial acceleration, one tangential acceleration. मैम correct है ये वाला? हाँ सर. Okay, अब कैसे करेंगे इसके बाद फिर? So Radial and tangential. So we'll use the full formula for angular acceleration. We'll even take into account dv by dt in that. अरे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है ना? root of a net. हाँ क्या? हाँ, रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्शन में न्यूटन्स लॉ ना, राइट? Yes sir. सो रेडियल यहाँ पे पूछा क्या है यहाँ पर? एंगुलर स्पीड इज इंक्रीज्ड. At what angular omega speed? final is equal to omega initial plus alpha t. Say at angular speed omega it slips, है ना? अरे at say at angular speed omega it slips. So Newton's law से radial direction में क्या होगा यहाँ पर? m radial acceleration क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर n. फ्रिक्शन का ये हो गया रेडियल कंपोनेंट. टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन होगा गाइस? अल्फा t ft is equal to m into at ना. हाँ, फ्रिक्शन का ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, और at को क्या लिखेंगे? अल्फा t. अल्फा into t, l alpha t. L alpha. अब जो है ये फ्रिक्शन का रेडियल कंपोनेंट, फ्रिक्शन का टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो नेट फ्रिक्शन कैसे निकालोगे? m root of a ना. ये वाला नेट फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? अरे इसका रिजल्टेंट ना. हाँ. Yes. R plus ft. m root of पाइथागोरस से fr square plus ft square. दोनों में जो है you'll have mass common. So basically omega square l का whole square plus l alpha का whole square. ये काफी लेंदी जा रहा है इससे. L common as well. Like we can just have ml alpha square, like w square plus alpha square. अब जब ये मैक्सिमम होगा इस साइड m, इस साइड भी ये ओमेगा मैक्स. l भी कॉमन ले लो ना. Yes, we can take that l as common plus l alpha का square. अब fs max, this is fs max, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम म्यू mg. फिर इसके आगे जो है m हटा लेना, and you will have to simplify from here plus l alpha का square. अब जो है यहाँ पर हाँ मतलब ऑलवेज यदि फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट्स भी आ रहे होंगे तो भी एफएस मैक्स को यूएमजी लिखे ना. जब दो कंपोनेंट्स आएंगे and they are perpendicular,
तो रिजल्टेंट ऑफ दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दोस ना. हाँ सर. हाँ, या फिर इतना क्यों करना, डायरेक्टली इन द प्लेन. हम बोल सकते हैं इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन n and mg cannot act in the plane of circular motion. So यहीं से कर सकते थे, यहाँ से जो है नेट फोर्स इज क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एफ आर स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर, एम बाहर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, और इससे जो है एम वही आ जाता ना, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर. ए आर जो है क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल का, एक ही बात है, एल अल्फा का होल स्क्वायर, एंड दिस इज एफ नेट. और इसको मैक्सिमम करना है, तो ओमेगा भी मैक्स हो जाएगा, ओमेगा मैक्स का स्क्वायर इंटू एल का होल स्क्वायर प्लस एल अल्फा द होल स्क्वायर. अब इससे ओमेगा मैक्स निकाल लोगे. गाइस ये वाला सबको समझ में आया ना? अब इससे सॉल्व करो, कितना आता है, एल भी बाहर आ जाएगा इजीली. ए एंड बी पार्ट मैच होता है. आ रहा है ऐसे आंसर. ओके, हाँ सर. नेक्स्ट वन इज विच सर तो 23rd. 23rd. ठीक है. ओह 23rd में जो है, so it's a case of, guys, 23rd is a case of which kind of motion? 23rd. Uniform circular motion. Uniform circular. Okay, so it is a case of uniform circular motion. Okay. So uniform circular motion. ठीक है. So it's a case of uniform circular motion. Okay, so भाई अगेन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. यहाँ पे ठीक है, इसको ऐसे पर्सन का ये हो गया mg नीचे, और ठीक है, यहाँ से जो है इसके हैंड्स पे वर्टिकल फोर्स आएगा, अदरवाइज mg को बैलेंस कौन करेगा. और यहाँ पर जो है ओमेगा भी आ जाएगा, एंगल बाय टाइम. So angle by time 20 revolutions per minute, 20 into 2 pi radians divide by 60 seconds. कितना हो जाएगा इसी वाला? 2 pi by 3. 2 pi by 3. 2 pi by 3 radians per second. भाई ये हो गया. अब जो है भाई ये दो फोर्सेस तो दिखा दिए. ये वर्टिकल वाला जो भी है उसको नॉर्मल बोल लो, या जो भी है हैंड्स पे नॉर्मल रिएक्शन बोल लो, या वर्टिकल फोर्स जो भी है. हाँ, अब इसमें और कौन सा फोर्स आएगा भाई, रेडियल डायरेक्शन में भी फोर्स आएगा ना, बिकॉज सर्कुलर मोशन है, रेडियल एक्सेलरेशन हो रहा है. So there must be force in radial direction, otherwise it's a clear violation of second law. And who will provide that radial force? Friction force between the person's hand and the rod. अगर कहीं ऑयली होगा तो बाहर फेंका जाएगा, राइट? और पूरा रॉड ऑयली है तो गाइस, कैन यू इमेजिन दे ऑल विल बी थ्रोन आउट, राइट? नाउ ऑयली नहीं, हाँ, तो ऑयली नहीं है, देयर इज अ फ्रिक्शन. ओके, नाउ यू कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन एनी किड इन रेडियल डायरेक्शन आल्सो. गाइस क्या होगा रेडियल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन? Mass into mu square r. Yes, so this is the friction. There is no tangential acceleration or tangential force, only radial force provided by the friction. A radial force or m radial acceleration क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r. r is ओमेगा स्क्वायर r कर लेते हैं. 2 pi by 3 का स्क्वायर into रेडियस. कहाँ गया रेडियस? इसमें कितना है इसका? 1.5. 1.5. Okay. The two kids hold at a distance. 3 by 2. Okay. So ये रेडियल एक्सेलेरेशन कितना आता है गाइस ये वाला?
रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ। 2 pi square by 3. 2 pi square by 3. ओके 2 pi square by 3 हो गया। 2 pi square by 3. Mass of the kid is 15 kg. 15 into 2 pi square by 3 हो जाएगा। मैं चेक करो आंसर से। Correct. अरे ऐसा हाँ। हेलो फिर नेक्स्ट वन गाइस। हाँ हेलो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करना होता है तो हम लोग वो आगे का भी करते हैं ना कि हेलो f into mj करके। और यू वांट टू सर फाइंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। हाँ सब पूछा नहीं है, मैं खाली बोल रही हाँ हूँ। हाँ नहीं फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है और कंडीशन क्या है, ये स्लिप हो रहा है जस्ट अबाउट, स्लिप ऐसा देना पड़ेगा कुछ राइट। Yes, sir. हाँ तब आप लिख सर सकते हो इसमें guys। डजंट मैटर कि 1 किड है या 2 किड है। नहीं अलग अलग, अगर कि किड 1 पे लगाया किड 2 पे भी लगाओ वही एक्सप्रेशन आएगा, न्यूटन्स लॉ का नाम। करेक्ट सर मतलब सिर्फ एक किड होगा पूरे जो भी इंस्ट्रूमेंट है उस पे, या 2 किड होंगे तो भी सेम ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना। हम तो इंडिविजुअल किड्स पे लगा रहे हैं और न्यूटन्स लॉ से जो आंसर आ रहा है हम उसको देख रहे हैं भाई। ओके सर। हाँ हाँ यस किसका डाउट था? सीमांत क्या डाउट था तुम्हारा? वो किसका डाउट था गाइस? हेलो यस हाँ सर आप 21 के बी पार्ट पे जा सकते हो। 21 का बी पार्ट। हाँ सर अरे मुझे डाउट पूछना था, मेरा माइक काम नहीं कर रहा था। 21 का बी पार्ट हाँ बताओ। सर 20 हाँ ये उसके नेक्स्ट पेज सर। नेक्स्ट वाला यस हाँ। सर इधर क्वेश्चन का लैंग्वेज मुझे नहीं समझा, मतलब वो एक्सेलरेशन अल्फा दिया था बराबर ना। एक्सेलरेशन अल्फा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया। हाँ तो हम लोग ने एफटी में ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अल्फा इंटू एल, मतलब एंगुलर यस एक्सेलरेशन इंटू अरे रेडियस बरा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होता है ना AT इज इक्वल टू R अल्फा, तो R L है ना, हाँ तो R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो L है तो L अल्फा हो जाएगा। फिर सर ये एफ आर में तो हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू अल्फा भी डाल सकते थे ना। अरे FR में FR इज इक्वल टू M इंटू AR। यस तो एंगुलर एक्सेलरेशन ना। अरे नहीं, वो अरे रेडियल है। AR तो रेडियल होगा ना, ओके सर। AR इज रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर R, हाँ और हाँ AT तो टेंजेंशियल है ना, और टेंजेंशियल इज R अल्फा। हाँ वो पता है। ओके सर। हाँ ये अंडरस्टूड। यस सर। ओके ओके ये तनिष नहीं आया क्या? सर आया। ओह आज इसका डाउट नहीं आ रहा कुछ। तनिष यू डोंट हैव एनी डाउट? चलो ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट। सो ये 27. 20 which one Mustafa, which one you have doubt? So even I have doubt in 27. 27 में 27. सर अरे डी हाँ 27 में डाउट है, ठीक है। तो 20 आफ्टर थर्ड 27th इसमें जो है what they have given guys, a block moves on a horizontal circle against the wall of a cylindrical room। मतलब कैसा गाइस? सिलिंड्रिकल रूम कैसा हो गया? स्नेहिल हाँ सर। व्हाट इज द डायग्राम यहाँ पर? The room cylindrical. नहीं से यू हैव सीन ये कड़ा Yes, sir.
कड़ा या फिर बैंगल ना, Yes. सपोज ये मोटी वाली चूड़ी है, राइट, बैंगल। सो बैंगल को क्या करो आप, जो है अपने फ्लोर पे रख दो, ओके, फ्लोर पे बैंगल रखो और एक पार्टिकल लो यहाँ पर, हाँ, और पार्टिकल को कैसा स्पीड दे दो, टेंजेंशियल स्पीड। ये तो प्लेन हो गया, ये प्लेन जिसमें है, प्लेन अंडरस्टूड नहीं, ये वाला प्लेन मतलब हाँ बैंगल, ये हाँ फ्लोर है ना, दिस इज अ फ्लोर। सर वो वॉल कौन सा वाला वॉल है, ऊपर वाला अरे कि एक मिनट जाओ, देखो सबसे पहला ये फ्लोर बनाया अपने घरों में, घर पे फ्लोर है ना यार, उस वाला फ्लोर बना लिया, ठीक है, ये वाला। हाँ सर। सर मैं ये पूछा था कि वो जो वॉल दिया है क्वेश्चन में सिलेंड्रिकल रूम का, वो अरे रुको सही, अब देखो ये फ्लोर पे हमने क्या रखा, एक बड़ा सा बैंगल रख लिया, बैंगल में थोड़ा सा ऐसा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा बैंगल थिकनेस रहेगा ना यार बैंगल की, ये चूड़ी की हाँ थिकनेस, हाँ ये उसके वॉल्स हो गए। इज दिस ओके? यस अब जो है एक पार्टिकल लाया और एक पार्टिकल को टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दी। अब इसका टॉप व्यू बनाते हैं, तो टॉप व्यू में जो है ये बैंगल, हाउ विल इट लुक लाइक, सर्कल। सर्कल ऐसा, ये ऐसा आ जाएगा। सो ये इधर हो गया। अब जो है सो ये वेलोसिटी इधर दे दी ऐसा। इज दिस ओके ना? सो ये वेलोसिटी यहाँ पे दे दी। अब क्या होगा, ये है ना, तो ये इसके अंदर घूमता रह जाएगा कि नहीं घूमेगा, बताओ, राइट? Yes. You can have this, अभी स्नेल एक चूड़ी ले लो, चूड़ी को रखो फ्लोर पे, चूड़ी के अंदर पे एक पार्टिकल को टेंजेंशियल वेलोसिटी, देखो अंदर घूमता रहेगा ना। अब मोटी चूड़ी है, यस श्रावणी, हाँ सर पर उन्होंने क्या दिया कि ब्लॉक है मास m का, वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल पर है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि जहाँ आपने वो बड़ा वाला डॉट दिखा ना, वी नॉट जहाँ से आ रहा है, वहाँ एक डिस्क हो वर्टिकली, ऐसा नहीं हो सकता क्या? अरे वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है ना। सो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर सर मोशन उन लोग ने मतलब फर्स्ट सेंटेंस है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल बना के मूव करता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ सिलेंड्रिकल रूम। तो अरे वो ये तो कौन, वही तो हो गया। अरे यार जैसे, या फिर तुम रुको, चलो इसमें ऐसा सोचो, सर वो तो फ्लोर आ, हुआ ना जहाँ पे वो मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, जहाँ पे दिया। ये फ्लोर हुआ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, हाँ हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर ही सर्कल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हुआ। हाँ लेकिन उन लोगों ने बोला अगेंस्ट द वॉल। अरे अगर मान लो वॉल को ये टच इसके करके होगा। वॉल्स नहीं होंगे तो पार्टिकल भाग जाएगा ना। अच्छा वैसे, चूड़ी की दीवारें नहीं होंगी, चूड़ी की दीवारें तो उनको फंसा के रखी ना पार्टिकल, तभी तो अंदर घूमेगा। अच्छा ओके अभी अंडरस्टूड? हाँ टेक आउट अ बैंगल, ट्राई इट नाउ, आई मीन ठीक है, यू ओके, सो जस्ट यू विजुलाइज दिस वन, है ना, ये विजुलाइजेशन हुआ गाइस, हाँ एवरीबॉडी इज एबल टू विजुलाइज दिस वन। देन सर डू यू मीन टू से कि वो जो ब्लॉक है मास m का, वो मतलब चूड़ी के डायरेक्शन में, चूड़ी के सर्कल में घूम रहा है? या फिर देखो, अगर ये विजुलाइज नहीं हो रहा है तो ऐसा सोचो, HCV यू हैव ना, HCV का पेज, सॉरी 1110 निकालो, HCV का पेज 1110 निकाला। यस सर। अब देखो उसमें जो है एक सिलेंडर रखा हुआ है वर्टिकल, यस सर। हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर वर्टिकल सिलेंडर रखा हुआ है, हाँ सर। और वहां पर जो है क्या रखा है, एक पर्सन को दिखाया है, पर्सन की जगह मान लो एक पार्टिकल को लेके एक टेंजेंशियल वेलोसिटी देंगे तो वो अंदर ही अंदर घूमता जाएगा। हाँ सर, उसके अभी अंडरस्टूड? सर्कुलर है उसके डायरेक्शन में ना। यस 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 यस, अभी समझ में आया हाँ सर। राघव?
राघव, you all understood? फ्रिक्शन किसके बीच में है? वॉल और ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन है ना? वॉल और किसके बीच में? ब्लॉक के बीच में। नहीं, अभी बात की बात, फ्रिक्शन तो बाद में आएगा। अभी ये समझ में आया डायग्राम? हाँ सर, थोड़ा। तो बॉल कैसे घूम रहा है उसके अंदर, वो लोग पेज 110 में देखा था, सॉल्व एग्जांपल 10 जो डायग्राम देखा उसका। हाँ सर, देखा। सो दैट मींस पार्टिकल जब घूमेगा तो वॉल के टच होकर अंदर ही घूमेगा ना, राइट? यस सर। चलो, यहाँ तक आने के बाद अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। गाइस, फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस क्या क्या दिखाओगे बताओ पहले? हाँ, mg नीचे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन किसका आएगा ध्रुव? फ्रॉम द फ्लोर। नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द फ्लोर आएगा, ठीक है। अब वॉल से भी आएगा, ये जो बैलेंस हो जाएगा। अब वॉल से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो किस तरफ आएगा? towards the center. Towards the center. Towards the center. So towards it the will center it will come. Yes, towards the center. This is a normal reaction from the vertical wall. So this will be called as a radial force. Okay. Now, अब वो जो है दीवार पे भी in the vertical wall there is a friction, right? Yes. Okay, friction. तो So अब जो मतलब है, particle is moving on the inner side of the wall. yes, पार्टिकल अंदर जा रहा है, अंदर एकदम दीवार से सट के घूम रहा है। Okay. सो पार्टिकल क्या हो रहा है? दीवार से टकरा के घूम रहा है। तो पार्टिकल दीवार से टकरा रहा है तो देयर विल बी अ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल एंड द वॉल। करेक्ट गाइस? होगा कि नहीं होगा? यस सर। भाई ये जो है दीवार है और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो उसके रिलेटिव मोशन है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई? सर पीछे मतलब डायरेक्शन कौन सा होगा ये तो बताओ, उसका नाम। अपोजिट टू वेलोसिटी। अपोजिट टू वेलोसिटी। एंड अपोजिट टू वेलोसिटी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो कौन सा फोर्स कहलाएगा? फ्रिक्शन। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन। और कौन से डायरेक्शन बोलेंगे इसको? ऑपोजिट टू वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में इस डायरेक्शन का नाम है ना टैंजेंशियल। हाँ, इस डायरेक्शन का नाम हो जाएगा टैंजेंशियल डायरेक्शन। सो फ्रिक्शन जो लग रहा है गाइस यहाँ पर टैंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है। सर वहाँ कैसे फ्रिक्शन लगा? गाइस, हु कैन एक्सप्लेन कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर कैसे लगेगा? The friction is between the wall and the block. So friction is always along the surface and वो surface tangential आएगा and because friction है it will try to oppose relative motion तो वो पीछे लगेगा, आगे नहीं। करेक्ट। along the surface के along लगेगा और relative motion को अपोज करेगा, इसलिए इधर। सर मुझे और क्लैरिफाई करना था क्वेश्चन से, मुझे नहीं समझा। मतलब सर वो जो पार्टिकल है ना, अभी आपने वो उसका नॉर्मल भी दिखाया था ना वॉल का लेफ्ट की तरफ टुवर्ड सेंटर, वैसे फ्रिक्शन नहीं आ सकता क्या उस रेडियल डायरेक्शन में? अरे फ्रिक्शन तो along the surface होता है, नॉर्मल टू सरफेस कैसे होगा? फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज along the surface। ऐसे लगने का मतलब फ्रिक्शन इज नॉर्मल टू सरफेस? नो। करेक्ट? ओके सर। So we have yes, हाँ गाइस, वर्टिकल डायरेक्शन में तो काम हो ही गया भाई। n फ्लोर इज इक्वल टू mg, इसको हटा दो साइड में। n फ्लोर माइनस mg इज इक्वल टू 0। नॉर्मल रिएक्शन बाय द फ्लोर इक्वल टू mg। वर्टिकल डायरेक्शन का हटा लो, काम हो गया। नाउ अरमान, it is an example of uniform circular motion or non-uniform circular motion? क्या सर? Is it an example of uniform circular motion or non-uniform circular motion?
नॉन यूनिफॉर्म कहाँ से आ गया? क्योंकि because there is फोर्स है ना, क्योंकि तो फ्रिक्शन भी है ना इसके पीछे से। acceleration होगा। tangential acceleration negative direction में apply करें। Yes, guys, there is a tangential force also. If there is a tangential force, there will be tangential acceleration. There is a tangential acceleration, मतलब speed will increase or decrease. Therefore, it is an example of non-uniform circular motion. यहाँ तक किसको डाउट? चलो ठीक है, अब यहाँ तक तो आ गया। अब न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है, क्लियर, ऑब्वियसली हमेशा वही कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ रेडियल डायरेक्शन में, क्योंकि 4 क्लास तो हमने सिर्फ एक्सेलरेशन समझने में लगा दी है। ठीक है भाई, नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन, मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन से स्पीड कम होती जा रही है, तो v²/r। गाइस, रेडियल फोर्स कौन सा होगा? नॉर्मल ऑफ द वॉल। अब फ्रिक्शन का नेचर क्या है यहाँ पर? काइनेटिक। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन F के बराबर म्यू के इंटू n, और ये म्यू के इंटू n इज mv²/r। v इज द स्पीड एट दैट इंस्टेंट। ओके, निकालना क्या है? एक मिनट। हाँ, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल। यस, हाँ, ए पार्ट नॉर्मल फोर्स कहाँ गया? यस, हाँ, ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट फ्रिक्शन फोर्स बाय द वॉल, काइनेटिक फ्रिक्शन, बी पार्ट। अब सी पार्ट टैंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक कैसे आएगा गाइस? ये वाला बताओ। सी पार्ट टैंजेंशियल एक्सीलरेशन मतलब इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट न्यूटन्स लॉ कौन से डायरेक्शन में अप्लाई करोगे? tangential direction. T is equal to m into at. Tangential acceleration m into at. Tangential force अपोज कर रहा है यार, इसमें माइनस लगा देते हैं। माइनस म्यू mv²/r, m goes out, so at is minus म्यू v²/r। चलो यहाँ तक तो आ गया सी पार्ट। मुझे नहीं समझा यार, मैं LHS पे क्या किया? तो किसमें? सी पार्ट या सी पार्ट में? सी पार्ट में। यस, हाँ, सी पार्ट में तो टैंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहे हैं टैंजेंशियल डायरेक्शन में। सो टैंजेंशियल डायरेक्शन में दिस इज द टैंजेंशियल डायरेक्शन, अच्छा। and in this tangential direction there is only one force acting along the surface, this is the kinetic friction here. So this is the value of kinetic friction, और उसको m into at कर लिया। Is this okay? Yes sir। हाँ, so at की वैल्यू आ गई माइनस म्यू v²/r, है ना? यहाँ तक किसी को डाउट? अब गाइस क्या पूछा है यहाँ पर? सर एफटी कैसा आया? कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन टैंजेंशियल फोर्स कैसा आया? ओह, काइनेटिक फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है बताओ? टैंजेंशियल डायरेक्शन। So that is a tangential force only. कैंसिल कर रहे हैं सर? अरे टैंजेंशियल डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स है भाई इसको कैंसिल करने वाला? अच्छा, ओके सर। टैंजेंशियल एक्सीलरेशन में हम लोग अल्फा नहीं लिखेंगे? नो, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने को बोला है, एंगुलर एक्सेलरेशन कहाँ पूछा है? ओके, हाँ सर। इफ दे हैड आस्क्ड एंगुलर एक्सेलरेशन तो हम उसको फिर r अल्फा इक्वेट करते हैं। ओके सर। चलो, अब जो है यहाँ से तो आ गया हमारा। अब डी पार्ट at is equal to minus mu v²/r। at is equal to minus mu v²/r। अब गाइस आपको इंटीग्रेट करने को बोल रहा है ना? सो इंटीग्रेट लिखा हुआ नीचे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको डिफरेंशियल फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन होगा। So you can write it as vdv by dt. Sorry, vdv by dx. Yes. No, you have a choice. You can write this as dv by dt
और v dv by ds फीचर कौन सा लिखोगे गाइस राइट यहाँ? फीचर में Okay. पता है हाँ नहीं इसमें कौन सा लिखेंगे? The first one. dv by dt. y You want time? No sir, v dv No, by VD by ds Oh. and then integrate. okay नहीं हाँ हाँ नहीं नहीं oh it has to, they have told in the next page okay नहीं guys यहाँ पे देखो ना उनको रहने दो we want to find after one revolution yes so guys हमें टाइम निकालना है क्या टाइम No sir. No, sir. टाइम नहीं निकालना Okay. Displacement Displacement. एक So we'll मिनट, use हाँ. VDV by ds only. 0 one to 2. revolution मतलब one revolution means how much is the distance 0 to 2 pi. 2 pi यार डिस्टेंस अरे वन रेवोल्यूशन मतलब 2 pi यार टाइम निकालना नहीं है तो ये चैप्टर को क्लोज करो यार इसको क्या है टाइम वेस्ट कर रहा है टाइम निकालना होता तो इधर से काम करते चलो ठीक है तो इसका यूज नहीं है तो उसको साइड करो यहाँ पे अब कैसे करेंगे यहाँ पर इसको इधर कर देते ना Yeah. ये एक v उड़ा देते हैं हाँ so this will be dv by v mu by r ds now dv by v ln mu by r ds initially when s is equal to 0 initial speed is some v naught and after the one revolution after one revolution distance s equal to 2 pi r we want to find speed so guys इसमें LHS का इंटीग्रेशन क्या होगा ln v upon v naught. ln v ln upon v by v naught. ln v by v naught guys ये समझ में आ रहा है ना d by v का इंटीग्रेशन ln v फिर v और v naught ln v by v naught we'll minus it, then we'll log rule to make it. ये सबको इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है ना गाइस ये वाला इंटीग्रेशन एवरीबॉडी अंडरस्टूड Yes. ओके और इधर वाला क्या आ जाएगा एक मिनट अदरवाइज मैं फिर से लिख देता हूँ सम स्टूडेंट्स दे माइट हैव नॉट अंडरस्टूड सो ये वाला ln v होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स v नॉट से v इस म्यू बाय r ये ds का s 0 से 2 pi r फिर देन ये वाला ln of b माइनस v नॉट ln of v by v नॉट हो जाएगा log of a माइनस log of b का फॉर्मूला म्यू बाय r s की जगह 2 pi r so ln of v by v नॉट माइनस म्यू into 2 pi फिर ये log वाला फॉर्मूला होता है v by v naught e to power minus 2 pi. Guys, you all understood? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है यहाँ तक. So this was the last homework. और हाँ और कौन सा homework था? अरे हाँ ये solid example भी तो दिया था इसमें. सर आप इसके पहले वाले साइड पे खाली एक बार रिपीट करोगे कि आपने क्यों बोला नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? Oh, non-uniform circular motion because there is a tangential force. If there is a tangential force, there is a tangential acceleration. If there is a tangential acceleration, the speed is not constant. Yes, sir. और सर आपने सॉल्व एग्जांपल 10 और 12 दिया था. Solved example 10. ऑब्जेक्टिव भी था. Okay, okay. पहले solved example. Yes, 12th वाला. हाँ, 10th and 12th. चलो पहला जो है. सर एक सेकंड नेक्स्ट वाले पे जा. Next page. Okay, okay. So guys, इसको dv by dt कब रखते हैं? When time required होता for time. लेकिन टाइम यहाँ कैलकुलेट ही नहीं करना है तो उसको रहने देते हैं. गाइस ये अंडरस्टूड ना कब v dv by ds लेना है कब dv by dt चैतन्य? हाँ सर. हाँ when we want to find time dv by dt और s के रेस्पेक्ट में इन्वॉल्व करना है तो ये आ जाएगा
So solved example 12 में doubt है 10. सॉल्व एग्जांपल 12 में डाउट है. ओके 10th वाला आया. हाँ सर. 10th वाला नैन आ गया था ना. हाँ सर 10th आया. 10th वाला एक्सप्लेन करो. सर मुझे करना है. हाँ 10th वाला. हाँ एक्सप्लेन. Yes, sir, 1 minute. HCV page 110. Solved example 10. इसको कुछ तो बोलते हैं ना, डेथ वेल ऐसा कुछ बोलते हैं ना गाइस, क्या बोलते हैं उसको. इसमें पर्सन्स ऐसे रहते हैं. ये पर्सन पहले फ्लोर पे खड़ा रहता है और फिर इसका स्पीड बढ़ाते जाते हैं और फिर नीचे का फ्लोर हटा देते हैं ना. हाँ. ओके. अरे you guys have seen, you might have seen this thing, ये ऐसा in washing machine also guys. जब उसके पूरे क्लोथ्स किधर चले जाते हैं वॉशिंग मशीन से. अब सर साइड की तरफ लग जाते हैं साइड में या फिर when it rotates very fast. yes, and also तामरा you might have seen जब मम्मी वो बनाती हैं डव, डोसे का डव, डोसा इडली का डव, उसमें पूरा मिक्सिंग में. Yes sir. ओके. सो जो है ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम mg. सर बॉडी कहाँ प्लेस किया वो समझ नहीं आ रहा. वो लास्ट क्वेश्चन. तो इसमें समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन. देखो नहीं इसमें ऐसा है, से मान लो एक पर्सन है और इसमें यहाँ खड़ा हुआ है राइट. फिर इसको रोटेट करना चालू किए, एक पर्टिकुलर एंगुलर स्पीड में ले आए, अच्छी ज्यादा एंगुलर स्पीड में. फिर लाने के बाद ना उस पर्सन के नीचे का जो फ्लोर है, ये फ्लोर हटा दिया. अब ये पर्सन कैसा है, इसमें लटका हुआ है बस, और ये घूम रहा है. नाउ अंडरस्टूड. ये पर्सन हवा में ही है और ये घूम रहा है. सो इसके एफबीडी में फोर्सेस क्या क्या दिखाएंगे भाई बताओ. सर नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा? ऑब्वियसली नॉर्मल टू द टुवर्ड्स द सेंटर. ये नॉर्मल. सो और कौन सा फोर्स होगा? अलोंग द सरफेस. Inertia will be that no sir. No, we are trying to draw FBD. We have to show the forces are along the surface. कौन सा फोर्स होगा? The friction force. Static friction force. Static friction force होगा तभी तो जो है ये एकदम पूरा एकदम चिपका हुआ है इससे. So you will apply first radial direction. यहाँ पे कैलकुलेट करना है मिनिमम स्पीड टू फाइंड द मिनिमम स्पीड. ओ इसका स्पीड v0 दिया गया, इस ओमेगा नहीं दिया हुआ है आपको, v0 दिया हुआ है. चलो कोई बात नहीं. टू फाइंड मिनिमम स्पीड v0, मिनिमम स्पीड निकालना है. तो चलो पहले न्यूटन्स लॉ लगाते हैं रेडियल डायरेक्शन में गाइस. न्यूटन्स लॉ रेडियल डायरेक्शन में क्या आएगा? सर या मिनिमम प्लस स्पीड इक्वल टू mg. यस मिनिमम स्पीड गाइस. इससे और कम स्पीड दिया तो पर्सन नीचे गिर जाएगा, नीचे स्लाइड करने लग जाएगा, मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है. यस रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन. रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r. एंड नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n. ओके सो n इज ये हो गया. अब फिर जो है ये तो यहाँ आ गया. नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन mu n is mg. fs मैक्स आ जाएगा यहाँ पर म्यू इनटू n. म्यू n की वैल्यू mv0 स्क्वायर बाय r. और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा? fs मैक्स माइनस mg इज इक्वल टू m इनटू 0. fs मैक्स इक्वल टू mg. mg आ जाएगा. हेलो सर. और ये वाला
mu mv naught square by r. सर हाँ, ये वाला बताओ कैसे आया? सर मुझे डाउट है किसमें? सर, ये एफएस मैक्स वो एमजी के अपोजिट है, इधर तक समझा, पर मैं सर पूछ रही हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि वी नॉट के उल्टा डायरेक्शन भी फ्रिक्शन होगा, जैसे कि पिछले सम में था। नहीं, वी नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, पर्सन जो है ना यहाँ पर उस डेथ वेल की दीवार के साथ एकदम पूरा चिपक गया है और दीवार के साथ साथ घूम रहा है. ओके सर। This is a rotating drum. The cylindrical vessel is rotating. अच्छा And सर, क्योंकि मैं पिछले वाले सम के डायग्राम में इसमें थोड़ा पिछले वाले सम में क्या था, वहां पार्टिकल का relative motion with respect to the surface of the wall was happening. Here there is no relative motion. Correct? सॉरी सर, यहाँ पे relative motion नहीं हो रहा है, वहां पे relative motion हो रहा था. हाँ सर। वहां तो भाई surface के along there was a relative motion, so there was friction. ओके सर। Correct. You all, everybody understood, guys? तो इसके पहले वाले एग्जांपल में सिर्फ एक पॉइंट में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है ना, जब वो अगेंस्ट द सिलेंड्रिकल वॉल में लगता है. ये इसके पहले वाले में क्या हो रहा था, हाँ, अगेंस्ट द वॉल स्लिप हो रहा था, तो स्लिप हो रहा है तो सरफेस के अलोंग फोर्स लगेगा अपोजिट टू द वेलोसिटी. सर मुझे एक क्लैरिफाई करना है, सर रिलेटिव मोशन तब हो रहा है ना कि जब पूरा सिस्टम ही हिल रहा होगा? प्लैंक के क्या क्या? सर पिछले सम में सर रिलेटिव मोशन क्यों हुआ? क्योंकि वो सिस्टम रेस्ट में था और वो पार्टिकल ही हिल रहा था। अभी सर इस वाले में तो सिस्टम भी हिल रहा है ना, तो इसीलिए रिलेटिव मोशन नहीं होता ना। यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पे तो ऐसे ही लोगों ने सेटअप ही ऐसा किया है ना. ये तो जो डेथ बॉल फॉर अ फन, ये इट्स अ फन इंस्ट्रूमेंट. इसमें पर्सन लोगों को खड़ा किया जाता है और फिर हाई स्पीड से पहले घुमाया जाता है ना, फिर नीचे का पर्सन उसके फ्लोर को हटा देते हैं, तो दे फील थ्रिल्ड लाइक दिस. तो वहां पर पर्सन का रिलेटिव मोशन नहीं होता है, पर्सन उनकी दीवारों के साथ जैसे चिपक के घूमता रहता है, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े उनके साथ साथ रोटेट होते हैं ना, वैसे. ओके सर, अभी समझा। हाँ हाँ. गाइस ये सबको समझ में आया ना? सर एक सेकंड रुकिए सर, कॉपी करना है। Okay, okay, okay. So what was the difference between this sum and the one we did before this? What is the difference between This sum and the one we did before this, मतलब उसमें आप बोल रहे थे ना relative नहीं, motion. वहां पे तो क्या हुआ है, वहां पे तो ये सिलिंड्रिकल रूम के अंदर एक पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी गई है, तो पार्टिकल का रिलेटिव मोशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द वॉल. यहाँ पर तो ऐसे हो गया जैसे वॉशिंग मशीन में आपके जो है घूम रहे, उसके वॉल्स के साथ साथ कपड़े भी घूम रहे, लाइक दैट. हाँ, तो चिपक गए एकदम पीछे और साथ साथ घूम रहे, राइट? Sir, I didn't understand the difference. तो दोनों क्वेश्चंस, who can ध्रुव, can you explain दोनों क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन और उसके पहले वाला क्वेश्चन? Yes. So, in the previous question, there was a room and there was a block which was given a tangential velocity which was moving in respect to the wall, like with respect to the wall, because walls are stationary. So इसीलिए kinetic friction लग रहा था उधर, and इधर the whole contraption is moving, it's rotating, and with that contraption the person is also rotating, so the person is not slipping.
the frictional force and all the forces are keeping him in place at rest with respect to the like whatever he is in. So, sir, in this one, like the whole rotor, the death well is moving, but in that one, the person was moving, right? हाँ, यहाँ पर जो है वॉल भी घूम रहा है, पर्सन भी साथ साथ घूम रहा है. वहां पर वॉल्स स्टेशनरी थे, पार्टिकल वॉल से टकरा के घूम रहा है. गाइस, यह सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, फिर नेक्स्ट 12th वाला करते हैं. 12th वाला इज माय फेवरेट क्वेश्चन. जरा ट्राई करो. हैव एवरीबॉडी ट्राइड? सर कुछ खास समझ में नहीं आ रहा सर. अरे 12th वाला. Yes, guys. Who can explain? सर उसमें एक स्टेटमेंट था, each part of the ring moves with velocity v. इसका मतलब ये है ना कि ring moves with the velocity v. Guys, who can explain this one? मतलब जो है we each can part of the find ring. we Yes, can find Suchi, the we can find the acceleration, like it will be w square r. So w we can find out like 33/1/3 times 2 pi r. Like per minute we can convert that to seconds, like revolutions per seconds from minute. And after we find that, we can just use w square upon r, and then m, and then multiply the radial acceleration by the mass, and that has to be like pi square upon 81. Then the friction coefficient has to be greater than that, or else it would slip. सर आप एक बार डायग्राम दिखाओगे क्या? ओके, इसका डायग्राम देखो. इसमें जो है ठीक है. Guys, has anybody understood ये वाला question? Yes, sir, somewhat. Yes, sir. Yes, हाँ. Sir, in this tension is 0 because there is no rope connecting. अरे no. See, ऐसा. See, this is Tension a always case of. doesn't need rope. Sir, normal reaction or that acceleration, that force, centripetal force. No, see, this is like this, guys. यहाँ पर जो है ये चेन, तो चेन की जगह ऐसा सोचो ना से ये मोतियों की माला, like beads, हाँ? Yes, can you imagine? ये ऐसा कई सारे beads है मान लो. These are the ये rope है ना, rope के molecules. See, ये rope के molecules. तो ऐसे कई सारे ये suppose ये चेन है. सारे V से मूव कर रहे हैं. V से. ये मोतियों का चेन. सामने ये अंडरस्टूड. ये चेन ऐसा बना हुआ है ऐसे. इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बीड्स और ये रोटेट हो रहा है प्लेन में. Okay, so this is rotating in a plane. So, sir, that one is that the rope, no, sir, that connecting everything. So one minute, हाँ. So this is ये वाला ऐसा. और जो है this every part is moving with a speed of some v naught, हाँ, tangential speed v naught. ये सामने अंडरस्टूड राइट. दिस वन, ये जो चेन है मोतियों, तो मोतियों की चेन घूम रही है टेबल पे पड़ी हुई, एंड दिस रेडियस इज आर, और ये ऐसा. हाँ, तो हमने although it's a ring obviously will be made up of large number of molecules और molecule के बीच में bonding होगा. And tension force is what, guys? Tension force is an electromagnetic force only, right? Yes. Tension force. See, tension force of string
टेंशन फोर्स ऑफ स्ट्रिंग, कनेक्शन से होता है। देखो 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं गाइस। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है एक मिनट, ये ना यू हैव नॉट डन क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, और हमने कराया था एनएलएम के फर्स्ट लेक्चर में। Yes. oh this I have told, oh, 1 minute. yes sir. Okay. Guys, ये वाला gravitational force, there is one called as electromagnetic force, electrical magnetic force. तो electromagnetic force ये 12th में अच्छे से पढ़ोगे आप लोग। Then there is strong nuclear force, 12th का last chapter में पढ़ोगे। And then there is weak force, weak nuclear force, ये 4 forces हैं। तो टेंशन फोर्स ऑफ स्ट्रिंग, तो जैसे ये गाइस, ये जैसे ये स्ट्रिंग है, हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं और ये ब्लॉक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो गाइस ये स्ट्रिंग को अगर कि इफ यू एनालाइज इट माइक्रोस्कोपिकली तो क्या होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स 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 मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में ये बाइंडिंग फोर्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो टेंशन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ, so tension force is electromagnetic force. चलो ठीक है। So now let us come back to here. अब मान लो जैसे ये मोतियों की माला घूम रही है, अब ये मोती और दिस मोती के बीच में doesn't have any force, कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं होगा, तो सब मोतियों की माला फट जाएगी और सब मोतियों की माला सब बाहर फेंका जाएंगे। You guys can imagine? ये वाला? Yes sir. Yes sir. So now अब जो है so basically we need to find the force in tangential direction. So 1 minute now you tell, it's a case of अगर एक एक पार्ट, अगर पूरे रिंग को छोटे छोटे मोतियों में बना लिया जाए तो it will be a case of, for each moti or each atom it will be a case of which kind of motion it is? Uniform circular motion. So it's a case of uniform circular motion. So it's a case of uniform circular motion. Okay. So all right. So it's a case of uniform circular motion. तो चलो इसको एनालाइज करते हैं गाइस। यार mg, तो हम क्या करते हैं? एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट। ओके, दिस इज माय एलिमेंट, दिस इज माय स्मॉल एलिमेंट हियर। ये दिस इज द एलिमेंट हियर, ये छोटा सा एलिमेंट with substance an angle of d theta at the center. तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? इस द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट विल बी r d theta. r d theta. गाइस ये एवरीबॉडी एग्रीज ना? अरे ये ऐसा होगा ना, देखो इसमें जो है सी आपने 3 लाइन क्या निकाले, मतलब तीसरा गलती से नहीं, सी दिस इज टॉप व्यू। ये टॉप व्यू में जो है, इफ दिस एंगल इज d थीटा, तो ये वाला लेंथ, ये छोटा सा लेंथ जिसका हम जिस पे न्यूटन्स लॉ लिखने वाले हैं, दिस इज द रेडियस r, तो ये लेंथ r d थीटा होगा ना। दिस dl विल बी इक्वल टू r d थीटा। गाइस l इज इक्वल टू r थीटा फॉर्मूला से। यस सर। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर, सो पूरे l लेंथ का चेन है मान लो, ठीक है। पूरा चेन जो है, ओ सॉरी, पूरा चेन का लेंथ क्या होगा? सरकमफ्रेंस 2 पाई r। 2 पाई r लेंथ के चेन का मास इज m। यूनिटरी मेथड, 1 लेंथ के चेन का मास विल बी m by 2 पाई r। सो dl लेंथ के चेन का छोटा सा dm मास विल बी, अरे एक का इतना है, ये वही हो गया ना गाइस, एक चॉकलेट का इतना, तो 5 चॉकलेट का कितना, 10 चॉकलेट का कितना, लाइक यूनिटरी मेथड। सो dl का कितना हो जाएगा? m by 2 pi r into the length dl, और dl कितना हो जाएगा? m by 2 pi r, और dl की जगह r d थीटा। सो दिस इज r goes out, m by 2 pi into d थीटा। गाइस ये समझ में आ रहा है क्या? Sir, can you get the previous step again? नहीं देखो, एक चॉकलेट का 2 रुपीज, तो 4 चॉकलेट का कितना हो जाएगा? इंटू 4 करना पड़ेगा।
Correct? Yes, sir. Yes, sir. So one length ka mass is this. So dl length ka mass will be how much? dl length ka mass will be the mass per unit length into the length of the element. Yes, sir. So got it. हाँ, या इसको ऐसा नहीं करना था तो ऐसे भी कर सकते हो. पूरा मास जो फैला हुआ है 2 पाई एंगल में पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है. 360 डिग्रीज में पूरा का पूरा मास फैला हुआ है. वन एंगल में मास क्या हो जाएगा? m/2 पाई. तो d थीटा एंगल में मास कितना हो जाएगा? dm विल बी m/2 पाई इंटू d थीटा. गाइस यहाँ तक किसी को डाउट? तो ये नीचे हमने क्या किया है m/2 into r d थीटा. पहले मुझे ये तो मास पर dx लेंथ, समझा. ये तो मास पर यूनिट इनटू लेंथ है ना. लेंथ गया या r चला गया, ये आ गया. हाँ सर. अंडरस्टूड? Yes, sir. मैन यू ऑल अंडरस्टूड ना? हाँ सर. चलो यहाँ तक आने के बाद अब न्यूटन्स लॉ की तरफ बढ़ने का. ये सब तो टाइम पास हो गया. चलो हाँ, न्यूटन्स लॉ. सो नाउ न्यूटन्स लॉ ऑन दिस एलिमेंट. अगेन वी विल बी यूजिंग द टॉप व्यू ओनली. टॉप व्यू में mg नहीं दिखाओगे गाइस. हाँ, so this is your element, this is your ring here. Oh, okay. So this is the ring here, and ये जो है ये छोटा सा element. This is a very small element. I am drawing it in an exaggerated way here. काफी छोटा सा element है. Like this, ये वाला सा. This angle is d theta, और ये वाला each angle will be ना d theta by 2. Each angle will be d theta by 2. So which is my interest here? ये छोटा सा element is my interest. This small element is my interest here. Okay. So अब इस पे yes हाँ. सर स्मॉल एलिमेंट के एंगल डी थीटा को एंगल बाइसेक्टर निकाला क्या? इसलिए Yes, this is the bisector. Yes. ओके सर. d theta by 2 और ऐसा. अब जो है इस एलिमेंट का FBD we are going to draw. We have calculated its mass. इसका मास आ गया था गाइस. कितना आ गया था? m/2 pi into d theta we just found. इस पे टेंशन फोर्स, obviously tension will be along the length of the string, tangential T. Along the length of the string, tangential T. यहाँ तक किसी को डाउट है इससे? So चलो कोई यहाँ तक कोई डाउट नहीं. ये ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल लाइन. तो गाइस ये वाला एंगल कितना होगा? d theta by 2. ओके, d थीटा बाई 2 हो गया भाई. चलो अगर ये d थीटा बाई 2 है तो ये कितना होगा? ये वाला एंगल गाइस यस कितना होगा? d theta by 2. 90 माइनस d थीटा बाई 2. अगर ये 90 माइनस d थीटा बाई 2 हो गया तो ये छोटा सा कितना होगा एंगल यहाँ पर? d theta by 2. ओके, दैट इज d थीटा बाई 2. तनिष ये एंगल समझ में आ रहा है ना? Where is तनिष? तो ये वाला अब t को रिजॉल्व करते हैं भाई. t cos d थीटा बाई 2. फिर वैसे ही t को रिजॉल्व करेंगे d थीटा बाई 2, और इस तरफ कितना आ जाएगा? t sin d थीटा बाई 2. और ये जो है so here ये वाला again this will be same d theta by 2 here, t cos d theta by 2, and this is t sin d theta by 2. So guys अब इस एलिमेंट के FBD में कौन सा फोर्स कैंसिल हो जा रहा है? t cos d theta by 2. Yes, ये वाला कैंसिल हो गया. तो नेट इनवर्ड फोर्स कौन सा बना इस एलिमेंट पर?
T sin d theta T by sin d theta by 2. ओके सो इस एलिमेंट पे गाइस ये बन जाएगा दोनों का t sin d theta by 2 अंदर की तरफ इस एलिमेंट पे दोनों साइड से ये वाला भी एंड ये वाला भी. तो दिस इज t sin d theta by 2. T sin d theta by 2. Now we are ready to apply Newton's law in radial direction. Okay. So guys, Newton's law radial direction में क्या equation आएगा ये बताओ. Net force radial direction. Mass into radial acceleration. Guys, mass क्या लेंगे यहाँ पे dm और radial acceleration कितना होगा? b square by r. Okay, v square by r. Okay. और radial force क्या होगा? 2t sin d theta by 2. Okay, so a radial force 2t sine of d theta by 2. 2t guys small angle के लिए sin d theta by 2 को क्या लिखेंगे? d theta by 2. Theta by 2. 2 उड़ा दोगे, then you will get the answer as t d theta. Now, why this is my favorite question? Because being an examiner, I will ask this question which we have asked in circular motion. We can ask this in electrostatics. Electrostatics chapter maybe we will ask this question इसी concept पे. We can ask this in magnetic field. We can ask this in. But now, sir, now we use electrostatics to do this sum, sir. No. Electrostatics में भी करेंगे, but in a different method, sir. In electrostatic. No. See, here you just have to. You don't know the electric force, so in the FBD you will not be able to show electric force now. After you learn the electrostatics, electric force concept, you will be able to easily show in the FBD the electric forces. Now here, the tension in the string, you guys must remember this way, guys. ये वाला पूरा याद ही रखना है. See, tension, tangential में t cos वाला cancel हो जाता है. दोनों sin वाले 2t sin d theta by 2 add होकर inward net radial direction में force आते हैं and the net radial force becomes t d theta. This is very important according to me. So ये वाला guys पूरा याद रखना है. 2t sin d theta by 2. तो ये अच्छे से याद रखना है. 2t sin theta by 2 उसको t d theta. तो नेट फोर्स बन गया t और d theta. dm की जगह m by 2 pi into d theta. So this is an important question. D theta cancel. So tension in the string C, m by 2 pi r, d square by r. ये guys, ये everybody understood? ये एडवांस में आ सकता है. हाँ, अरे ये तो भाई किसी के साथ भी क्वेश्चन बना सकते हैं. मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये टी का एटलीस्ट टेंशन फोर्स अभी जैसे निकाला है वो आना चाहिए. फिर बाद में इलेक्ट्रिक फोर्स पता चल गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ भी आप बना सकते हो उस क्वेश्चन. लेकिन टी का कंपोनेंट निकालना अभी इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट नो कि नेट फोर्स टेंशन की वजह से एक छोटे से एलिमेंट पे जब निकालने गए, कॉस वाला कैंसिल and the radial sine wala they get added up to 2t sin d theta by 2 and it becomes finally t d theta. सर वो एंगल ऊपर d theta by 2 कैसे आया वो बता सकते हो? Oh, ठीक है भाई. If you don't like this view, you can change this view also. नहीं सर, वही व्यू में. No, रुक जाओ. अभी देखो guys, say let us take the element here. अब इसका एलिमेंट जो है गाइस, अपन एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर देते हैं. हमने यहाँ लिया, कहीं भी एलिमेंट लो यार, क्या फर्क पड़ता है. सपोज मैं ये वाला एलिमेंट लेना चाहता हूँ, छोटा सा एलिमेंट, एंड दिस छोटा सा एलिमेंट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ छोटा एंगल d theta at the center, and this is the bisector line of that element.
So this angle is what? D theta by 2 here. D theta by 2 here. Tension force always along the length, tangent along the length T. Tension force along the length T. So tension force along the length T. और ये वाला जो है, this is your vertical line here. This will be d theta by 2 here. This will be 90 minus d theta by 2. Then ये वाला correct है ना? Check it. So this will be d theta by 2 here. Similarly, ये वाला भी d theta by 2. 90 minus d theta by 2. Very important question, guys. And ये वाला d theta by 2. t का component cos वाला cancel होने वाला है. Cos d theta by 2. Cos वाला will cancel out. इस element के FBD पर t cos d theta by 2 cancel out. Only the radial ones they remain. The radial ones are towards the center. यहाँ पे element छोटा सा element है. I have drawn it exaggerately very big here. T sin d theta by 2 here. This is T sin d theta by 2. So net force, net radial force will be the addition. ये और ये same direction में add हो गए. 2T sin d theta by 2. Is this view okay, guys? ये वाला. Yes, sir. Understood. Thank you, sir. Okay. So कैसा भी करो भाई, ये आना चाहिए यार, ये वाला 2T sin d theta by 2. Sir, Yes. हाँ. Can you please show the quiz? send it on the process of getting m by 2 pi d theta. कौन सा वाला? ये वाला? ओ ये वाला you are asking. ओ इसको दोनों मेथड से भी कर सकते हैं. You want to do by angle or by length? Sir, angle method बताइए ना एक बार. Angle में you can say that पूरा 360 डिग्री का angle is there. Yes, sir. 360 डिग्री का angle is 2 pi radians. Yes. So 2 pi radians में पूरा m mass फैला हुआ है, distributed है. So ये पूरी माला जो है 2 pi angle में फैली हुई है, right? So one angle के लिए the mass in one angle will be m upon 2 pi. So 1 का आ गया, तो d theta angle पे the mass will be m by 2 pi into d theta. Yes, sir, got it. हाँ. Guys, ये important question सब ध्यान दे रहे थे ना? Snail. समझा सर. Ruchir, any doubt? No, sir. Okay. Guys, here this page is done now, so I'll go to the next page if you're done. Okay. Yes, sir. Once ये प्रॉब्लम याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर. नहीं रहेगा? यस सर, याद रहेगा. ओके. So सर अब समझ में आया क्यों आपका फेवरेट था ये. हाँ. So और इसमें एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है इन लोगों का. आज थोड़ा सा let me scare you guys. और एक क्वेश्चन याद आ रहा है इन लोगों का. I have to find that question. और मुझे और ठीक है, I will give that as a homework. You guys should try and then we'll discuss later on. Yes, Ramni. हाँ. सर मुझे मतलब अभी कर रहे हो तो स्क्रीन शेयर के लिए मैं पूछ रही थी, बाकी कुछ नहीं. You're saying something? Please tell again. नहीं सर, nothing. Oh, you have done this one. Written. Okay, so I can move on. Okay. So I had a doubt in the 27th one that you did. 27th वाला. हाँ, 27th में क्या डाउट था बताओ. तो वहाँ पे हम लोग ने n of floor क्यों नहीं लिया? मतलब वो b अरे, पार्ट पे d अरे, पार्ट.
भाई डेथ वेल में तो जो नहीं है सर, तो ये वाला नहीं, 27। 27 में 27 में तो भाई देखो क्या होगा इसमें जो है सर बी पार्ट में वो हाँ म्यू एन है ना, तो वहाँ पे हमने एन में वो एन फ्लोर इक्वल टू mg वो अरे क्यों नहीं डाला? फ्रिक्शन तो वर्टिकल वॉल में ही है ना। सी फ्रिक्शन किस में है? Tangential direction. Yes. So the ground is smooth. The ground, the floor of the room on which the block is smooth, but the wall is having a friction. नीचे वाला फ्लोर ऑयली है। मतलब सर समझो, मतलब ऐसा बोल रहे हैं ना, समझो एक आदमी था और ही फेसिंग द सेंटर, उसकी पीठ पर फ्रिक्शन का फोर्स आ रहा है वॉल की वजह से, है ना? यस यस। और 27 क्वेश्चन में ग्राउंड इज स्मूथ। हाँ सर। Then understood this one? Yeah. Okay okay हाँ चलो ठीक है फिर आगे करते हैं। So now ठीक है क्या कर रहे थे? हाँ so okay. Sir, I have a doubt. हाँ Sir, in the objective part. ऑब्जेक्टिव वाला थोड़ा सा, अरे आज तो थोड़ा ये तो थोड़ा थ्योरी आगे तो पढ़ाने दो, डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में कर 10-15 लेंगे। मिनट ही है, क्या ही पढ़ा। हाँ सर। अरे दोनों अरे Sir, नहीं only वो 15 more minutes more, sir. so one example I can take, right? हाँ yes sir. Okay. Conical pendulum. Conical pendulum. ठीक है guys, conical pendulum. From the name we can say cone is involved. Cone के जैसे दिखने वाला pendulum, conical pendulum, all right. So इसके लिए guys जो है simple pendulum and conical pendulum, ठीक है? Simple pendulum. This some students they might have studied this one. Guys, simple pendulum पढ़ा हुआ है ना? Yes, बताओ sir. Simpler what is pendulum. सर न्यू simple pendulum? कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो? नहीं एग्जाम्पल करा रहे हैं। गाइस सिंपल पेंडुलम पढ़ा है ना, वो घड़ी पे जो घड़ी का वॉल में जो ये होता है ना पेंडुलम यार। Yes, sir. ओके सो दिस इज द सिंपल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम में जो है से ये ऐसा दिस इज अ ये वॉल मान लो और ये प्लेन और ठीक है इसमें जो है ये ऐसा हो गया। So now this is an example of ये part again this is the center, this will act like a center of the center, so a part of circular motion and here the circular motion is happening in a vertical plane, यहाँ vertical plane में हो रहा है, right guys? Yes, sir. Conical pendulum में क्या करते हैं guys से यहाँ पर आपने this is the point of suspension, this is a point of suspension, this is a vertical line, यहाँ तक ले गए ऐसे, ये पेंडुलम को ना ऐसे एंगल थीटा पे ले गए, फिर यहाँ पे you give a tangential speed such that ये ऐसे घूमने रह जाएगा, so you have given a tangential speed here. This is the length of the string. So now see particle is moving like this. So this is an example of which kind of Horizontal circular motion. Yes, this is an example horizontal circular motion. So but the tension is in a different plane. Okay. So now Dhruv, where is Dhruv here? Yes. Horizontal circular motion. So इसमें क्या करते हैं guys? रस्सी से बांधा मास, रस को साइड में खींचा, एंगल थीटा नॉट पे ले गए और एक tangential speed दे दिया. This is your imaginary plane, है ना? ये plane है. इस plane में पार्टिकल घूम रहा है ऐसा.
Now, yes, Dhruv, Isbe, what are the forces acting here? Mg, Sir, mg, then tension. Mg, and you have tension here. Yes, sir. At a angle 90 minus theta. Okay, so here are angle. So now, so Dhruv, T के components क्या क्या आएंगे बताओ भाई. Sir, along the Sir, circular motion, T that अरे will be अरे डायरेक्शन तो पता है sin ना. theta. वर्टिकल T डायरेक्शन cos आएगा theta एक Yes, along sir. the रेडियल vertical Sin line. theta वो बोल रहा. T cos theta अरे along the vertical line. yes, T डायरेक्शन तो हमने पढ़ा हुआ है ध्रुव. Why you are hesitating? सर मैं सर मैं वही बोल रहा था. Okay. Along the plane, it will be T Yes. sin theta. Along the ऐसा. plane, along this plane. So in circular motion, along the plane has two meanings. You can have radial and tangential. Now you be specific. The radial. Radial. Yes, you can be as specific as possible here. This will be T sin theta. So there are only two forces acting on the body. एक बार velocity देके छोड़ दिया guys, ये घूम रहा है अपने आप. एक बार आपने velocity दी और ये मस्त अपने आप घूम रहा है. Now, Dhruv, circular motion horizontal plane है. कैसा circular motion है? Uniform या non-uniform? Sir, So what was it? Dhruv, yesterday you taught me sir, uniform. uniform circular motion. How did you taught me yesterday? How did you teach me yesterday? Uniform circular motion कैसे decide किया? Sir, if we see in the tangential axis, there is no force acting, so Yes. acceleration will be 0. Very good. So it Guys, will be देखो, uniform. T cos theta mg vertical direction के हो गए. T sin theta radial direction का हो गया. There is no force in tangential direction. So इसका जो है no force. Let me write no force in tangential direction. No force in tangential direction. Therefore, AT is 0. Therefore, it is a UCM. UCM और plane कैसा हो गया? Horizontal circular motion है. Plane is horizontal. And plane is horizontal. And plane of circular motion is horizontal. Plane of circular motion is horizontal. Guys, ये दोनों pendulums के बीच में difference समझ में आ रहा है क्या? Conical pendulum और simple pendulum? Yes, sir. Yes. Tamra, you have understood what is the difference between conical pendulum and Sir, simple pendulum? if we draw the FBD, the forces are in 3D, and in that simple pendulum, the forces are in 2D. No. You are not specific again. Sir, actually, in that horizontal conical pendulum, horizontal circular motion. Yes, its motion is contained in a horizontal plane, and this motion is contained in a part of vertical. No? Yes, part of, yes, okay. It's a part of vertical circular motion. Okay, part of vertical circular motion. And first difference, second difference. So the tension. Second difference. Write two differences. Board question, 2 marks. Conical pendulum, Sir, the simple tension pendulum. in this is in this it's in that 3D. If we take 3D only, in simple pendulum, tension is in the same plane of the motion. In this, the tension is not there in the same plane of the motion. No, 2D, 3D depends upon the coordinate axis selected. So, any other good point you can tell? You know, it's a case of which kind of circular motion? This simple pendulum. Uniform or non-uniform?
uniform. अरे Sorry sir, non-uniform non-uniform. acceleration due to Earth's gravity. सिंपल पेंडुलम में, अरे भाई सिंपल पेंडुलम में यहाँ पे स्पीड कितना होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे? 0. और यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम speed increases. Speed maximum. So it's a case of कैसा circular motion? Non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion. And in that conical pendulum, according to the question, it may be uniform or non-uniform. Conical pendulum में जो है स्पीड देके छोड़ दिया तो अपने आप घूमता रह जाएगा, ठीक है? Yes sir. So guys, ये सिंपल पेंडुलम वाला आगे के चैप्टर में आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में. अभी हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें पढ़ना सिंपल हार्मोनिक मोशन. हाँ, अभी हम कौन सा हमें करना है? Conical pendulum. Okay. So conical pendulum. चलो भाई conical pendulum. Oh, okay, okay. Done, sir. Done. हाँ. चलो तो इसका जो है चलो भाई एफबीडी बना लेते हैं यार. सो एफबीडी में जो है से दिस इज द पॉइंट और ये जो है स्ट्रिंग and this is the angle theta naught here. Forces. हाँ भाई forces बताओ क्या क्या है यहाँ पर. ये जो है mg here and you have the this is the tension force T. Vertical direction will have this component T cos theta naught and this will be T sin theta naught. So it's a UCM here and ठीक है इसका speed given है. If speed is given V naught constant speed. Yes guys, Newton's law कौन कौन से डायरेक्शन में लिखना है बताओ इसमें. In which direction will apply Newton's law here? Sir, for finding what sir? Oh no, no, just we want to write Newton's law equation. Which two direction we should write? Guys? Sir, y direction. Y direction. Vertical direction, sir. Vertical direction. In that it is equilibrium. T cos theta is equal to mg. Okay. So this is T here, and this is the angle theta naught, और ये वाला जो है T cos theta naught, and this is T sin theta naught, mg. Vertical direction में. Okay guys. चलो भाई vertical direction में क्या equation आएगा? T cos theta. T cos theta minus mg is equal to 0. T cos theta naught minus mg is equal to m into 0. M into 0. So here T cos theta naught equal to mg. और second direction कौन सा होगा? Radial direction. Radial direction. T sin theta. Radial direction में net force in radial direction mass into radial acceleration. So here T sin theta naught. Radial acceleration v square by r. Now इसको नीचे ले आते हैं. T cos theta naught is equal to mg. Now when you divide it, what you'll get here? T tan theta. अरे T तो cancel हो जाएगा. T कहाँ से आएगा? Yes, the tan theta is equal to v square by r into g. V square by rg. Suppose you are given this इसका angular velocity is given omega naught. So by angular velocity are given है, तो radial direction में now the equation will become radial direction में जो है, so radial direction में जो है अगर case 1 case 2 में omega naught given है, radial direction में it will become T sin theta naught m omega naught square into the radius r, और
वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन सेम ही रहेगा गाइस, p cos theta naught minus mg is equal to 0. तो यहाँ से when you divide it you'll get tan theta naught is omega square r by g. M cancels out. So we can have this answer or this answer depending on the cases जो भी given है. ये वाला everybody understood guys? ये वाला पर आपने इधर r length of the string नहीं लिया है ना? Oh no, R is the radius of circular motion here. हाँ sir. R is the radius of circular motion. चलो guys, ये वाला copy करो जल्दी. Sir, that's all for today. Okay, ठीक है guys, फिर आज इतना ही करते हैं. When we have a class tomorrow, क्या guys? Tomorrow, yes. Yes, sir, tomorrow. So for Sir, tomorrow, आप- what homework क्या करने वाले हो? What homework? तो आपने वो इरोडो का सम बोला ना, वो एक दे दो बस. Sir, booklet. Irodo का sum, let me check. One minute. Sir, booklet we haven't done yet, no, sir. No homework was given. Oh, booklet. आपने फिर लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था ना, वो HCV का ऑब्जेक्टिव वगैरह, तो वो कंप्लीट कर देंगे. यस सर, एचसीवी का ऑब्जेक्टिव बाकी है. Yes, sir, वो कर. सर HCV का ऑब्जेक्टिव प्लस The first half an hour we can do that HCV, then after that 1.5 hour theory, sir. Okay, so but that boy was asking for that question. सर वो तो आप ग्रुप पर डाल दीजिए, पर मैं बोल रही थी कि HCV का भी हमें करना है होमवर्क. Okay. ठीक है. सर पहले HCV का डाउट क्लियर कर दे, फिर उसके बाद स्टार्ट कर दे वो. Oh, is it? Okay, ठीक है शिवान, वैसा करना है. Sir, homework. 2 में मेरे को बहुत तो नहीं तो बुकलेट से दे सकते, इरोडो नहीं देना तो. हाँ. ग्रुप पर डाल दीजिए सर. इरोडो का एक ही क्वेश्चन था. आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट. चलो ठीक है गाइस, फिर आज तो इतना करते हैं. आई विल सेंड दैट क्वेश्चन. Okay. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, Bye. Bye all. Thank you. Thank you, sir. Bye guys. Let me check. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye guys. क्वेश्चन कहाँ चला गया? ठीक है, I will find it out. Okay guys, then meet you in tomorrow class. Bye all. Bye. Bye, sir. Thank you, sir.